Hi everybody, welcome to third lecture of our chapter, that is chemical kinetics. Chemical kinetics. Hope you all have seen the first and second lecture of chemical kinetics. In this particular lecture, we are going to understand what are integrated rate law for higher orders, and particularly we are going to see second order, third order and nth order, say nth order any reaction, and their half-life of nth order. We will going to see the shortcuts also. हम लोग shortcuts भी देखने वाले पूरा अच्छी तरह से, and we also going to see the graphical representation of nth order, of any nth order reaction. How can we represent graphically? And this is the most important as far as entrance exam are concerned. The one question is going to come from this particular portion, the graphical representation of any order reaction, say nth order reaction. And in next chapter, in the next chapter, we are going to see the MCQs based on this chapter. इन अगले चैप्टर में हम लोग बस MCQs करने वाले हैं. आज हम लोग पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं. पूरी थ्योरी पार्ट अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, या फिर MCQs के लिए. तो आज हम लोग देख लेते हैं. तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ. क्या किया था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर विच ऑर्डर? हम लोग ने कौन से ऑर्डर का किया था? जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. तो जीरोथ ऑर्डर के लिए अगर याद हो तो हम लोग ने कौन सा किया था भाई? A naught minus AT equals to KT, where A naught equals to initial concentration or amount, and AT is concentration or amount at time t. This we have already seen. And for the first order we have seen that 2.303 log to the base 10 A naught by AT equals to KT, where similarly A naught is initial concentration and AT is concentration at time t. Concentration or amount. The concentration can be given or amount can be given at time t equals to 0 or t. And we have also seen the half-life of this two particular reaction, half-life, and we have derived also in previous video. Okay, the half-life T half for zeroth is given by A naught by 2K equals to T half. And one most important sentence we have written that half-life of any zeroth order reaction, half order of zeroth order reaction is concentration dependent. It is depending upon concentration, no? Okay, now T half for n equals to 1 means half-life for first order reaction. So half-life of first order reaction is given by 0.693 upon K equals to T half. This indicates that half-life of any zeroth order reaction, half-life of any first order reaction, half-life of any first order reaction is
concentration independent means here the concentration term is not there, no. अगर concentration term यहाँ पे नहीं है तो concentration independent है. समझ गया अच्छे से? पक्का? आगे बढ़े अभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now can you represent this graphically? Can you represent all these graphically? Just try to plot the graph. If it is not possible, I will explain in next video. Try to represent graphically by yourself. Now today we are going to see the integrated rate law for second order reaction. Integrated rate law for second order reaction. Now for second order reaction, consider a reaction 2A gives product. 2A gives product means for this we can write the rate law. अगर हम लोग इसका rate law लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ना, rate is proportional to reactant raised to stoichiometry. Stoichiometry is 2. And for example, if we say the definition of order, for the definition of order, here the order is 2 because sum of exponent is order, no. So definition of order is 2. So therefore it is second order reaction. Consider it as a second order reaction. Okay. Now for the rate we can write say minus dA by dt. मतलब rate of decrease of concentration of A with time is proportional to A raised to 2. Proportional to A raised to 2. Now so we can make a bit arrangement. For example, if we don't want the proportionality sign here, हम लोग को proportionality तो चाहिए नहीं रहता है, तो हम लोग को कुछ तो constant चाहिए. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ minus dA by dt equals to ka square. इतना तो समझ गया रहेगा. नाउ हम लोग क्या करते हैं, a को इधर लेके चले आते हैं और t को इधर लेके चले आते हैं. तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ऐसा कुछ बचेगा माइनस डी और माइनस साइन का भी उधर लेके चले जाओ. dA by a square equals to k dt. माइनस साइन इधर. नाउ इसको अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है बिकॉज हम लोग को इंटीग्रेटेड रेट लॉ चाहिए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट विथ लिमिट. इंटीग्रेट विथ लिमिट, कोई तो एक लिमिट डाल देते हैं. कौन सा लिमिट, टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेके टाइम t तक, मतलब 0 से लेके t तक में कितना कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, और a0 से लेके at तक. नो a0 at dA by a इक्वल्स टू माइनस साइन ऐसे ही के बाहर इंटीग्रेशन का रूल है tt 0 से लेके t तक. नाउ अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन. a -2 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, और dA भी ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू माइनस के ऐसे ही रहेगा dt 0 से लेके t तक, a0 से at तक हो गया हमारा. नाउ अभी हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू n, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू क्या होता है, n. क्या रहेगा, a n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो सेम इसमें भी ऐसे ही करना है. तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू n है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, क्या हो जाएगा, ये a रेज़ टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इक्वल्स टू. अच्छा यहाँ पे अभी हम लोग को कुछ तो दिया भी है लिमिट. लिमिट क्या भाई, a0 और at इक्वल्स टू k. इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x. तो dt क्या होगा, t 0 से लेके t तक. हम लोग का रूल इतना समझ गया, आगे बढ़े. ठीक है. नाउ इसको हम लोग एक्सपांड कर देते हैं.
एक्सपांड करते हैं अब इसको, a रेस टू -1 होगा ये, और ये -1 होगा, ठीक है। a0 से लेके at तक इक्वल्स टू kt, t -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन ऐसे ही 1/a, क्योंकि अपन रेस टू 1 -1 है, a0 से लेके at तक इक्वल्स टू kt, t -0 kt, अपर लिमिट माइनस साइन ऐसे ही रहेगा हमारा, माइनस साइन हम लोग यहाँ पे चल रहा है हमारा अभी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/at minus 1/a0 equals to kt, समझ गया। नाउ दिस माइनस गेट कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विथ 1/at minus 1/a0 equals to kt. This is integrated rate law for second order reaction. Integrated rate law for any second order reaction is given by this formula. Understood? Understood? Okay. I will repeat it once again. ठीक है? Now, for the second order reaction. Second order reaction के लिए हम लोग को क्या चाहिए भाई? कोई तो एक रिएक्शन चाहिए. तो consider a reaction. Consider reaction. Consider a reaction. Consider reaction 2A gives product. 2A gives product. So 2A gives product we can write in the rate law form. So we can write in rate law form that is rate is directly proportional to reactant raised to stoichiometry. Here the stoichiometry is 2. Therefore order of reaction is 2. Now the rate we can write is minus dA by dt. We can write as dA by dt is directly proportional to a raised to 2. Since it is second order reaction, therefore a raised to 2. Now we will make the short arrangement. We will take a here and t here. So we are left with this. Now by arrangement we have integrated this equation. Integrated by putting limit, means limited integration with limit with a certain boundary condition. The boundary condition is what? Means at the start of reaction, that is time 0, and for the final reaction, for example, we have to consider reaction at t equals to 10 minutes, means at certain time t. Therefore at t equals to 0, concentration is a0, and at time t equals to t, concentration or amount is at. Now by integration we have got this, and by putting upper limit minus lower limit we have got this equation. This is integrated rate law for any second order reaction. Any second order reaction. Hope all are understood. Now we will derive for half-life of second order reaction. Half-life of second order reaction. Before deriving half-life, we will see how can we represent this graphically. How can we represent this graphically? Now I am drawing this. Now see. So what is our equation? 1/at minus 1/a0 equals to kt. This now put this side, 1/at equals to kt plus 1/a0. Comparing this equation with y equals to mx plus c. Now if we are comparing this y equals to mx plus c, then the graph will be in this form. Y equals to y, what is y? 1/at. Okay. X equals to t. This is k, and this is 1/a0. Hope all will understand. Now for half-life of second order reaction. For any second order reaction, half-life is given by. So our equation for the full life of second order reaction is 1/at
minus 1 by A naught equals to KT half. Now put our condition. Therefore, sorry, this is KT. For T equals to T half. What? T equals to T half. So AT will be A naught by 2. AT will be A naught by 2, no? Therefore, put this in the above equation. Put this condition in above equation. We will get 1 by, what is AT? A naught by 2, no? A naught by 2 minus 1 by A naught. A naught will remain same, KT half. Now this will go upward, minus 1 by A naught equals to KT half. Now 2 minus 1, 1 by A naught. This is half-life for any second order reaction. Hope all are understood. Now we will derive equation for any third order reaction. We will derive equation for any third order reaction. For third order reaction, let's derive. For third order reaction. Third order reaction. Consider any reaction. Consider any reaction that is 3A gives product. 3A gives product. How can you write the rate for this equation? How can you write? We can write in this form, no? Rate is proportional to reactant raised to 3. Because rate of any reaction is proportional to reactant raised to stoichiometry. Here stoichiometry is 3. And by definition of order, we know that sum of any exponent sum is known as order. So consider this as third order reaction. Therefore, rate law is given by this equation. Therefore, rate can be written as minus dA by dt is equals to, here it is proportionality is there. Therefore, we have to remove the proportionality. हमको proportionality निकालनी पड़ेगी यहाँ से. तो हम लोग को कोई तो constant चाहिए. A raised to 3. Now, अगर मैं फिर से इसको हम लोग करते हैं थोड़ा रीअरेंज, तो माइनस डी ए रेस टू 3 इक्वल्स टू के डी टी. के डी टी हो गया. अभी सेम वैसे हम लोग को करना है. अगर हम लोग को इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट विथ लिमिट. और कैसे लिमिट करना है अभी? इंटीग्रेशन ऑफ A0 से लेके AT तक. अभी हम लोग को मालूम है कि अगर n रेस टू है तो हम लोग को क्या जाएगा? A रेस टू माइनस 3 डी ए इक्वल्स टू इंटीग्रेट माइनस साइन इस साइड लेते हो आप, के डी टी 0 से लेके t तक. के को क्योंकि के की प्रॉपर्टी क्या है? अगर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी कांस्टेंट कहाँ रहता है? बाहर आएगा ना कांस्टेंट. तो हम लोग को क्या मालूम है? इंटीग्रेशन ऑफ A0 से लेके AT तक A रेस टू माइनस 3 डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी 0 से लेके t तक. अभी हम लोग को सेम मालूम है A रेस टू n है. यहाँ पे A रेस टू n है तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या हुई? n+1 अपॉन n+1. तो अभी हम लोग को क्या करना है? A रेस टू n है तो सेम ऐसे ही करना है हम लोग को. A रेस टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 A0 से लेके AT तक इक्वल्स टू माइनस के ऐसे ही बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? dx क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x होएगा. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल्स टू t 0 से लेके t तक. इतना समझ गया? आगे देखते हैं. नाउ A रेस टू माइनस 2 ये हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा और ये भी माइनस 2 हो जाएगा. ये भी माइनस 2 हो जाएगा ना. ठीक है. A0 से लेके AT तक इक्वल्स टू के टी माइनस 0 टी होएगा.
ठीक है, आगे देखें। अभी पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हेयर द 1/2 वी कैन टेक 1/2 एज अ कॉमन, माइनस साइन रिमेन्स सेम, तो 1/2 रिमेन्स कॉमन हियर, देयरफॉर वी विल रिमूव दिस, तो माइनस 1/2 टेक एज इट इज 1/80 अपर लिमिट माइनस 1/a0 लोअर लिमिट इक्वल्स टू kt minus kt, sorry, minus minus get cancel, so we are left with 1/2 1 upon 80 minus 1 upon a0, sorry, here it will be square, once again we can see, so minus 2 is there, no, so therefore minus 1/2 1/80 square minus 1/a0 का square equals to kt. Since here minus 2 is there, no, if it will come in the denominator it will remain as square. Now minus minus same get cancel, minus minus get cancel, we left with 1/2 1/80 minus 1/a0 square इक्वल्स टू kt. अच्छा, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो मेरे को कुछ तो एक मालूम चलेगा क्या? अगर मैं कुछ ध्यान से देखता हूं तो कुछ तो एकदम नया चीज मालूम चलेगा। क्या? हम लोग ने अभी सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाला था, तो क्या निकाला था भाई? 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल्स टू kt, ऐसे निकाला था ना हम लोग ने। अगर ऐसा निकाला था हम लोग ने तो इससे हम लोग कुछ तो nth ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं। nth ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं हम, nth ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। कैसे बताओ भाई, nth ऑर्डर के लिए कैसे निकाल सकते हो आप? इससे हम लोग एक जनरल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ना, एक जनरल डिस्क्रिप्शन देख लो, इतना समझ गया अच्छे से। आगे देखें, ठीक है, आगे देखिए। तो एक इससे हम लोग को जनरल डिस्क्रिप्शन ये मिल जाएगा फॉर एनी nth ऑर्डर। nth ऑर्डर, व्हाट विल बी द रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन ऑफ एनी? तो इट विल बी लाइक दिस, नो, 1/n minus 1, therefore if it is 3, therefore 1/2 is there, no, 1/2 is there, no, तो n minus 1 अंडर ब्रैकेट 1 upon 80 raised to n minus 1 minus 1/a0 raised to n minus 1 equals to kt for any nth order reaction. This is general rate law, integrated rate law for any nth order reaction. Remember this equation. This can be asked directly for MCQ for any nth order reaction. You not need to do it derive also. अच्छा, अगर मैं nth order reaction के लिए कोई एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ तो जाए, फॉर एग्जांपल लो फिफ्थ ऑर्डर ले लो। फिफ्थ ऑर्डर के लिए क्या करोगे आप? 1/5 minus 1 अंडर ब्रैकेट 1/a raised to 4 minus 1/80 raised to 4 1/a0 raised to 4 equals to kt. सिंपल, इजी है ना। आगे देखें, आगे हम लोग देखते हैं फॉर एनी हाफ लाइफ। और इतना याद रखना, ये जो हमारा इक्वेशन था, ये जो हमारा पर्टिकुलर इक्वेशन था फॉर, क्या हम लोग ने बोला? 1/n minus 1 1/80 n minus 1 minus 1/a0 n minus 1 equals to kt. This is not valued to not equals to 1, और ये हम लोग को इसके लिए वैलिड नहीं है क्योंकि उसके लिए लॉग आता है, लॉग का आंसर आता है। समझ गया? आगे देखिए, इतना याद रखना बस। अभी फॉर हाफ लाइफ, फॉर एनी हाफ लाइफ, अभी हाफ लाइफ का क्या करेंगे भाई? तो इतना याद रखना, हाफ लाइफ फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन
इज गिवन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 n minus 1 C naught raised to n minus 1 equals to KT half. This is general representation of half-life for any nth order reaction. For any nth order reaction, the half-life is given by this formula. For any nth order reaction, half-life is given by this formula, where C naught is initial concentration. सबको समझ गया इतना? तो ये इतना याद रखना, शॉर्टकट आ रहा है आराम से, ठीक है? आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई? नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या भाई? फॉर एग्जाम्पल कंसीडर रिएक्शन मिथाइल, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर मिथाइल इथेनॉइड से C2H5, even you react with H2O, दिस रिएक्शन इज ऑकर। तो अगर मैं देख रही इस रिएक्शन को देख रहा हूं, तो अगर रेट लॉ कैसे लिखोगे? रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है आपका? CH3COOC2H5 और H2O। किसी के भी रेश्टो में क्या है? 1 ही है, 1 है। तो अगर देखने से लगता है कि n=2 है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट पहले लगा दो, पहले अभी हम लोग देख लेते फिर। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इसमें H2O का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा रहता है कि ये कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता, इस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट हो गया तो मतलब ये K हो गया ना, K डैश ले लो। तो ये कांस्टेंट ले लो, बड़ा कांस्टेंट हो गया CH3COOC2H5। तो मतलब ये क्या है? हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन हम लोग को देखने से क्या लग रहा है? सेकेंड ऑर्डर, लेकिन है कौन सा? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ गया? तो दिस इज नोन एज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो एनी रिएक्शन which appears to be higher order but it is lower order। मतलब कोई भी रिएक्शन हम लोग को हायर ऑर्डर दिखेगा, लेकिन वो रहेगा कैसा? कौन सा? लोअर ऑर्डर रिएक्शन। समझ गया? दिस इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़े, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग कंसेप्ट पढ़ने जाते हैं। अभी हम लोग कोलिजन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग कोलिजन थ्योरी। ये कोलिजन थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके लिए? एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में है। और सबसे बड़ी बात, ये अगर बोर्ड्स वगैरह के एग्जाम में, कोई भी सीबीएसई स्टेट्स बोर्ड वगैरह के लिए ये एक टॉपिक पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे, ठीक है? कोलिजन थोड़ा सा देखेंगे, फिर इसके ज्यादा डिटेल में हम लोग को इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कोलिजन थ्योरी। अच्छा, कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है? मेनली कोलिजन थ्योरी बोलता है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? For any reaction to be occur, the two molecule must collide with each other. Two molecule must collide with each other. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रास्ते से सीधे सीधे जा रहा हूँ,
और सामने वाला भी सीधे सीधे आ रहा है। अभी हम दोनों में झगड़ा होने के लिए या फिर रिएक्शन होने के लिए क्या करना चाहिए, हम दोनों जाके टकराना चाहिए। तो यही होता है रिएक्शन। तो फॉर एनी रिएक्शन टू बी ऑकर, molecules must collide। कोई भी रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल कोलाइड होना चाहिए। समझ गया? अच्छा, अभी कोलिजन के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सामने से जा रहा हूं तो वो भी मेरे साथ ही जा रहे हैं, तो कोलिजन तो होगा नहीं, हम लोग साथ में ही चलेंगे। तो क्या होना चाहिए इसका, दोनों की। अच्छा, अगर मेरे को कोलिजन होने के लिए मैं किसी खली से तो लड़ूंगा नहीं, अपने वाले से ही लड़ूंगा। तो मॉलिक्यूल होने के लिए, कोलाइड होने के लिए ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन मस्ट बी सेम। ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए, सेम एनर्जी भी चाहिए। अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी कोई भी कोलिजन होता है तो उसमें झगड़ा तो होगा नहीं। झगड़ा हुआ नहीं मतलब रिएक्शन होगा नहीं। मतलब कोई भी रिएक्शन होने के लिए वो कोलिजन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोलिजन विच is effective collision। Collision which led to reaction is effective collision। मतलब कोई भी इफेक्टिव कॉलिजन ही रिएक्शन होना चाहिए। तो एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ी एनर्जेटिक्स भी है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, फॉर एनी रिएक्शन टू बी ऑकर मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, मॉलिक्यूल कोलाइड होना चाहिए। अभी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अभी क्या होना चाहिए, उसकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। अभी कोई भी कोलिजन जो रिएक्शन को प्रोडक्ट बना दे, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दे, मतलब कोई भी रिएक्शन जो रिएक्शन को कंप्लीट कर दे कोलिजन, उसको हम लोग इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। समझ गया? आगे बढ़े, ठीक है। एक दो पॉइंट और है। अच्छा, अभी इसको हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो कि कोई भी कोलिजन हो रहा है, मतलब कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी से टकरा रहा है, तो डायरेक्ट तो पहले झगड़ा तो होगा नहीं, पहले गाली गलौज होगा, मतलब एनर्जी बढ़ेगी ना हम लोग को। तो कोई भी कोलिजन, तो सबसे पहले कोलिजन से क्या बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, फाइनली यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे झगड़ा हो जाता है और फिर झगड़ा शांत भी हो जाता है। तो दिस इज एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस से रेट ऑफ एनी रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल आराम से जब कोलाइड होता है तो एनर्जी एक्वायर करता है, फिर एनर्जी बैरियर पार करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट और एनर्जी बैरियर और एक्टिवेशन एनर्जी। इसको अभी फिर हम लोग को प्रोडक्ट का हमेशा कम एनर्जी रहता है और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोग को दो कंसेप्ट और बाकी है। दो कंसेप्ट कौन सा बाकी है, सबसे पहला रिलेशन ऑफ के, मतलब रेट कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, टेम्परेचर is given by RNS equation। RNS इक्वेशन से दिया जाता है कोई भी रिलेशन के, ये और ई का। अच्छा, ये हम लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग को याद रखना है, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी इसमें। तो अभी हम लोग को ध्यान से देखोगे भाई, RNS इक्वेशन इज गिवन बाय K इक्वल्स टू
ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, के ए ई ए अपॉन आर टी। समझ गए इतना? तो ये हम लोग को याद रखना है। वेयर के इक्वल्स टू क्या है? रेट कांस्टेंट। ए क्या है? ए को क्या बोलते हैं हम लोग इसको आरएनएस फैक्टर बोलते हैं। where R equals to rate constant, universal gas constant. And T equals to temperature. अच्छा, आप इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? कंसीडर, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं। तो अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में आप क्या अप्लाई कर दो? ln मतलब नेचुरल लॉग। दिस इज नोन एज ln, नेचुरल लॉग। तो अप्लाई करो, देखो क्या होता है भाई। ln k इक्वल्स टू ln a, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो ln क्या हो जाएगा? ऐड कर देगा इसको। अच्छा, अभी ln a है ना यहाँ पे, तो अभी ln का लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? जो लॉग के सर पे रहता है उसको कदमों में लेके चले आता है। तो ये तो लॉग के सर पे है ना, तो आगे देखते हैं। ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी। ln e, और ln e तो हमेशा 1 होता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? y इक्वल्स टू mx प्लस c, ऐसा। y एक्सिस पे ln k, x एक्सिस पे क्या लोगे आप? 1/t, 1/t ले लो। ये क्या हो जाएगा भाई मेरा स्लोप? माइनस ई अपॉन आर, माइनस ई अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा? हमारा स्लोप हो जाएगा। समझ गया? तो ये हम लोग ऐसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और किस तरह कर सकते हैं? ये इक्वेशन समझ गया? k इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। नाउ अभी तो हम लोग ने देखा ln k वर्सेस 1/t। इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो भाई। तो 2.303 log टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2.303 ln a, या फिर log a, log टू द बेस 10 ना, माइनस ई अपॉन आर टी। इसको सबसे डिवाइड कर दो 2.303 से, तो मेरे पास बचेगा क्या? log टू द बेस 10 k इक्वल्स टू log टू द बेस 10 a माइनस ई अपॉन। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, इसको भी हम लोग ग्राफिकल से सेम रिप्रेजेंटेशन आएगा। ये log a हो जाएगा, ये ln log k हो जाएगा, ये 1/t, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ई अपॉन 2.303 आर। समझ गया? तो ये y हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा 1/t, और ये क्या हो जाएगा? स्लोप m, और ये क्या हो जाएगा? c। समझ गया? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ अभी हम लोग को क्या याद रखना है कि कैटलिस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये लास्ट पार्ट है हम लोग का चैप्टर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले हम लोग टेम्परेचर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? फैक्टर टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता रहेगा? क्या लगता है कि टेम्परेचर अगर हम लोग हीट करते हैं कोई भी रिएक्शन को, तो रिएक्शन बढ़ जाता है? बिल्कुल। इतना याद रखना कि
for each 10 degree Celsius rise in temperature, rate of reaction is almost double. Almost double. And this is given by Maxwell. Boltzmann distribution. This is given by Maxwell and Boltzmann distribution. तो इतना याद रखना, for each 10 degree rise in temperature, rate of reaction is almost double. And graphically we can represent ये नॉर्मल टी हम लोग लेते हैं, T1, T2. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम पार्टिकल्स रहेंगे, यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. यहाँ पे याद रखना T2 पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट डबल. दिस इज गिवन बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी. समझ गए इतना? आ जाओ भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. नाउ कैटलिस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट? कैटलिस्ट का अगर सही से मीनिंग समझना है तो कंसीडर आप 9 दिन से व्रत है, ठीक है? आप 9 दिन से व्रत है और आप एक भी कदम चलने लायक नहीं है, और आपके पीछे पागल कुत्ता आ जाए, आप भागोगे कि नहीं? जरूर भागोगे. तो वही कैटलिस्ट का काम होता है कि आप एकदम कोई भी रिएक्शन एकदम होने वाला नहीं है, उसमें अगर मैं कैटलिस्ट डाल दूं तो रिएक्शन फटाफट होने लगेगा. या फिर कैटलिस्ट ये भी काम करता है कि जो रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है उसको रोक देगा. फॉर एग्जांपल, आप बहुत पैसे वेस्ट कर रहे हो, आपके मम्मी पापा एकदम शुद्ध पता चले, मतलब बहुत कूटे, तो एकदम पैसा कम करना, बदमाशी कम करना शुरू कर दोगे. तो इसका मतलब क्या है? कैटलिस्ट क्या करता है? जो रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, रिएक्शन को घटा भी सकता है. लेकिन इस पर्टिकुलर लेसन में हम लोग क्या देखेंगे? ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन को बढ़ाते हैं, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो अगर मैं कैटलिस्ट को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करोगे कैटलिस्ट को? एनी मटेरियल विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. एनी मटेरियल which alter the rate of reaction. Any material which alter the rate of reaction, जो रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है. समझ गया? तो ये होता है हमारा कैटलिस्ट. नाउ कंसीडर एक रिएक्शन. हम लोग को मालूम है कि कोई भी रिएक्टेंट ऐसे ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, तो फॉर एग्जांपल अभी झगड़ा हो रहा है तो पहले गाली गलौज देंगे, एनर्जी बढ़ेगी, फिर ऐसे एनर्जी घटेगी. लेकिन उसमें से अगर कोई बीच में से चिल्ला दे, कोई भी जो पब्लिक देख रही हो चिल्ला दे कि मार इसको, तो रिएक्शन फटाफट हो जाएगा ना. हमारा फटाफट हो जाएगा, मतलब कम ही एनर्जी, ज्यादा एनर्जी बढ़ानी नहीं पड़ेगी. मतलब ये क्या है? अनकैटेलाइज्ड. और ये क्या है? कैटेलाइज्ड. और ये क्या कर रहा है? एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहा है. एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहा है. तो E1 ले लो, E2 ले लो, एक्टिवेशन एनर्जी. तो मैं क्या बोल सकता हूं? कैटलिस्ट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. कैटलिस्ट क्या करता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है. समझ गया? इतना अच्छे से समझ गया? तो ये यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स. अभी बचा क्या? अगले लेक्चर के लिए हमारे पास बचा क्या है?
अगले लेक्चर के लिए हम लोग इस पे से एमसीक्यू करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे या फिर कुछ नए क्वेश्चन जो इंटरेस्टिंग रहेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हर एक शुरू से लेकर अंतिम तक एक पूरा हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, ठीक है। और एक भी कंसेप्ट छूटने वाला नहीं है। तो होप सब लोग ने अच्छे से ध्यान दिया रहेगा इस पूरे चैप्टर को, ठीक है। इतना समझ गया पूरा अच्छी तरह से, रब करूं। अब ध्यान से सुनो। तो क्या अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स पूरा अच्छी तरह से खत्म किया। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली हम लोग रेट ऑर्डर और ये सब हम लोग ने पढ़ा अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में एमसीक्यूज। एमसीक्यूज किसके, केमिकल काइनेटिक्स के। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से एकदम पूरा रिवाइज कर लेना, ये एकदम पूरा अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, नोट्स अच्छे से लिख लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स अपने पास रखना अच्छे से। क्योंकि सबसे आइडियल क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग देखें या फिर पढ़े तो उसके नोट्स बना के रखना होता है। तो नोट्स बना लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी सॉल्व करना। तो अगले में हम लोग एमसीक्यू करेंगे और क्या करेंगे, और आप क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से देखना है। 3 पार्ट हम लोग का चैप्टर पूरा अच्छी तरह से देखना है आप लोग को, और हम लोग अगली बार एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, आप कमेंट में क्या बताओगे मेरे को कि अगला हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़े, अगला चैप्टर कौन सा पढ़े हम लोग जो एकदम ऐसे सेम इंटरेस्टिंग है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। तो आप लोग बताओगे कमेंट में कि कौन सा। तो उसके लिए अभी सबसे पहले वीडियोस को लाइक कर देना, क्योंकि हम लोग ने मेहनत किया तो आपको भी थोड़ा कर लेना। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और शेयर किसको करना, जिसको भी लगता है कि हाँ बहुत ईजी से कोई भी चैप्टर खत्म करना है। और वो कौन सा चैप्टर, बस हम लोग एमसीक्यू नहीं देख रहे हैं ना, हम लोग पूरा इंटायर चैप्टर देख रहे हैं। तो जिसको लगे कि हाँ बहुत अच्छे से चैप्टर को समझेगा तो उसको सबको जिसको जरूरत है उसको शेयर कर देना अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। बाय, टेक केयर।